नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKB और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों कहां पर हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। And to our viewers in China, ni hao. To our viewers in Japan, konnichiwa. Pradeep ji. Amaru Yako Jambo to viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili, right? I haven't worked out the Portuguese greeting as yet, but very soon we shall soon be visible, not just in Portugal, a very small country. We will be visible in Brazil. Now that would be something. That would be something. In the meantime, Pradeep ji, सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि जहाँ तक ट्रम्प साहब का सवाल है, अब जाकर के अमेरिकी पब्लिक को मालूम पड़ रहा है कि यार भारत से पंगा लेने का कि क्या कीमत चुकानी पड़ती है। क्या है कि ऑलमोस्ट 31% ऑफ ऑल द मेडिसिन्स, ओवर द काउंटर मेडिसिन्स in all the pharmacies all over America are Indian made. That is, they're imported from India. Now you've increased tariffs by about 50% of there, so which means even the smallest cold medicine is going to cost you 50% more. As a result of which, the pharmacy shelves are empty. Doctors don't know whether or not when they prescribe a medicine, whether or not the patient will actually be able to access it or will be able to buy it from the local pharmacy or the hospital pharmacy, and that's led to a huge crisis. Didn't anybody advise him about this before he went on this tariff imposing spree? I mean, I don't understand. There is a lot of rumblings within the US Congress. The US Congress are asking questions right now that Trump, on what basis, what is the entire Congress for? The US Congress as an entity, what is the use of it if you are taking independent decisions? You have snatched away our freedom, our right to give suggestions and issue policies, saying that there's an emergency. There's an emergency, and in an emergency, the US President has absolute power to take decisions on behalf of the entire Congress. And that he's been doing continuously. Continuously, he says, you have made the entire United States Congress irrelevant. Totally. We don't have any power. We're just looking at what you're doing. And is it going to be good or bad? Nobody knows. सबसे बड़ी बात ये है कि उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी साहब से जब पूछे गए, दो सवाल पूछे गए। नंबर एक कि ये टैरिफ कौन देगा, ये तो बताइए। आपने 50% टैरिफ लगा दिया है इंडिया पर, 50% लगा दिया ब्राजील पर, चाइना के साथ चलो आपकी हालत खराब हो गई है, सो यू हैव स्टेप बैक बिकॉज यू आर स्केर्ड ऑफ चाइना। बाकी देशों के ऊपर भी कहीं पे 10%, कहीं पे 15%, कहीं पे 20%, कहीं पे 30%, इंक्लूडिंग 36% ऑन कनाडा बाय द वे। तो ये पैसे देगा कौन? He was not able to answer. The Treasury Secretary of Donald Trump was not able to answer. Who's going to pay for this? That's one. Number two, everybody is asking the entire Trump administration, what is the emergency? Emergency क्या है भाई? वो कहते हैं साहब डेफिसिट है। कहते ये डेफिसिट तो 40 साल से चल रहा है। ट्रेड डेफिसिट अमेरिका का तो 40 साल से चल रहा है और अब जा करके आ गया पता नहीं क्या, इट इज कम टू गॉड नोस हाउ मेनी ट्रिलियन डॉलर्स। But America still remains the most prosperous country in the world, richest country in the world, the most powerful country in the world. So, यहाँ ये देखने वाली बात है प्रदीप जी, ट्रम्प साहब जो हैं, जो असली दुश्मन है ट्रम्प के, उनको पनिश नहीं कर रहे हैं। जो उनके एलाइज हैं आज तक, जो अमेरिका के साथ खड़े रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इवन यूके बाय द वे, ऑस्ट्रेलिया एंड ऑफ कोर्स इंडिया, इन सब के ऊपर ट्रंप साहब ने कहीं पे 20%, कहीं पे 10%, अक्रॉस द बोर्ड तो 10% लगा दिया, 10%. And he believes that the greatest danger facing US is facing a huge recession. This recession that is absolute magnitude as per Trump, and that's why he's taken up the emergency powers of a president and is trying to negotiate. At the same time, what we've heard इस पिछले 4 दिन में 3 बार पाकिस्तान ने इस देश इंडिया पर हमला बोला है। मतलब we are going to attack you, we are going to nuke you, we are going to nuke the whole world, and if we go down, we'll take the entire half the world with us. तो इस प्रकार से स्टेटमेंट, and the statements are coming from the US land, I mean वहां से इन दी, तो US की जमीन से ये थ्रेट आ रहा है। तो the point is, does Trump want to engage into Indo-Pak war, a Pakistan-India war, forcing Pakistan to war with India?
people have been talking like that. और प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये मजे की बात ये है, काफी न्यूज चैनल्स हैं हिंदुस्तान के जिन्होंने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को लिखा है कि भैया ये आपकी जमीन को इस्तेमाल कर रहा है न्यूक्लियर थ्रेट देने के लिए, और आप लोग क्या कर रहे हैं इसके बारे में. देयर इज अ वेरी वन लाइन आंसर व्हिच हैज कम, प्लीज डायरेक्ट योर क्वेरीज टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. Now, another aspect is that we're talking about the axis, Indo-China and Russian axis. But the Chinese are slightly, they doubt our intentions. They say if Trump gives a call to Prime Minister Modi, invites him over, he might forget China and go instead have a deal with the United States. Now that is something that, by the way, is something the Chinese critics and the people, analysts are saying that this might happen. So they're very skeptical on what India is going to do. Yes, Pradeep ji, that is something which I also need to know. ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए ट्रम्प साहब ने कहा मैं सारे टैरिफ हटा रहा हूँ हिंदुस्तान के खिलाफ, आ जाओ यार जरा बात करते हैं, क्या मोदी जी ऐसा तो नहीं है एकदम वहां चले जाएंगे? और इंडस वाटर ट्रीटी जो है, जो अभी सस्पेंड करी हुई है, हमको क्या है वो ट्रम्प साहब के ट्वीट में देखने को मिलेगा कि इंडस वाटर ट्रीटी हैज बीन रिस्टोर्ड टू व्हाट इट वाज अर्लियर, स्टेटस को रिस्टोर्ड. कहीं ऐसा तो नहीं होगा? क्योंकि सर सीज फायर में तो यही हुआ है ना. मतलब हमारी अनाउंसमेंट के आधा घंटा पहले ट्रम्प साहब ने ट्वीट कर दिया कि देखो साहब सीज फायर हो गया. लेट्स गो स्ट्रेट अक्रॉस टू आवर गेस्ट. वी गॉट वंडरफुल गेस्ट टुडे. वी गॉट मिस्टर समीर भाकरे, आवर ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम द बीजेपी. समीर भाकरे साहब नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. कैसे हैं सर? I can't hear you, Bhakre Saab. Bhakre Saab, good evening. Hello. Yeah, I can hear you now. Good evening, sir. Good evening. Good evening. And our old friend Mahesh Tapase Saab after a long time. Tapase Saab, namaskar. He just नमस्कार. disappeared. जय महाराष्ट्र. You disappeared for quite some time, Tapase Saab. Tapase Saab was working very, very hard. I have disappeared, but I am not into oblivion. I'm there. You're still there. So that will never happen. That we know will never happen, not to somebody like you. Sir, क्या बात कर रहे हैं? And of course we have our old friend Akhilesh Katiyar Saab. Akhilesh Katiyar Saab, नमस्कार. आप भी बहुत दिनों के बाद आ गए कटियार साहब. बड़े दिनों के बाद आपके दर्शन हो रहे हैं कटियार साहब. समाजवादी जी पार्टी, आपसे भी मिलके मुझे बहुत अच्छा लगता है. राजेश, समाजवादी पार्टी आजकल बड़े जोरों पे सर. मजा आ गया जिस तरीके से आपके लोग काम कर रहे हैं. मैं सिर्फ नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, आपके जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, अरे बाप रे बाप, लग रहा है बहुत सीरियसली ले रहे हैं. इस बार पहली बार मैंने देखा बड़े दिनों के बाद कि बहुत गंभीरता से एक एक चीज को लिया जा रहा है हर पार्टी द्वारा. मैं सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा, बीजेपी भी और कांग्रेस भी और जितनी भी बाकी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में. रियली एंड ट्रूली वंडरफुल. तो लेट मी स्टार्ट विद अखिलेश कटियार साहब. अखिलेश कटियार साहब, आपके कोई 20 डिस्ट्रिक्ट हैं इस वक्त, 20 डिस्ट्रिक्ट, 20 जिले हैं उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ से ग्रस्त है, पानी से ग्रस्त हैं. जी जी. वहां पे रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन ऑपरेशन चल रहे हैं, बाकी सब चीजें चल रही हैं वगैरह वगैरह वगैरह. अब मुझे ये डर है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कहां आ रही है? मुझको तकलीफ यहां पर आ रही है कि ये पानी तो जाएगा वापस एक बार जब बरसात बंद हो जाएगी, उसके बाद जो मेडिकल इमरजेंसी जो उत्पन्न होगी उसका क्या करेंगे सर? क्योंकि आपने इतने तो हॉस्पिटल बंद कर दिए, इतनी डिस्पेंसरीज बंद कर दी, जो सब्सिडी आती थी मेडिसिन के लिए, डिस्पेंसरीज हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, वो योगी आदित्यनाथ जी को पता नहीं क्या हुआ, उस दिन उन्होंने जाकर बंद कर दिया. अब क्या करेंगे सर, बताएं, क्योंकि देयर विल बी अ हेल्थ इमरजेंसी सर. फ्लड्स के बाद क्या होगा, अब आप बताएं सर. राजीव साहब, आपने बड़ा जायज सवाल किया है. अभी मैं कानपुर देहात से हूं जी. मेरे जिले में भारतीय जनता पार्टी के 2 मंत्री हैं और वहां पे बहुत सारे यमुना नदी के किनारे के गांव डूब गए. तो वो क्या कर रहे थे कि उनको लैया बांट रहे थे. लैया जो होती है चावल से भून के बनती है. इतने संवेदनहीन लोग हैं, इन्हें यह नहीं समझ आता कि जिनके घरों में कई दिनों से पानी भरा हुआ है ये लैया खाएंगे. जी. तो ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी की, ये तो बड़ा सवाल गंभीर है कि जब ये पानी लौटेगा, गांव खाली होंगे और फिर जो बीमारियों का वातावरण चलेगा,
तो राजीव साहब, इन हम सवाल उन लोगों से कर रहे हैं जिन लोगों ने कोरोना की बीमारी को भी अवसर के रूप में उपयोग किया था। जी वो कहते थे कि आपदा में अवसर तलाश लो, इसमें भी कोई ना कोई अवसर तलाशेंगे, क्योंकि परिवार वाले लोग, समाज वाले लोग, बाल बच्चों वाले लोग, जिनके घर परिवार, बीवी बच्चे, नात रिश्तेदार होते हैं, उन्हें तो इन चीजों की चिंता और गहराई से उनका एहसास होता है। अब राजीव साहब, इनके तो कोई है नहीं उस तरीके का, तो इनसे कोई संवेदनशीलता की उम्मीद तो बिल्कुल की नहीं जा सकती है। लेकिन कटियार साहब ये इसी बताएं, तरीके का काम करेंगे। जी 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 कटियार साहब ये बताएं कि जो मैंने सवाल पूछा है, क्या ये सवाल सरकार नहीं पूछे? क्या कोई एक्शन प्लान है इसके बारे में? आपको कोई जानकारी? क्योंकि मुझे जानकारी नहीं मिली है अभी तक कि जब पानी लौटेगा तब क्या करोगे। जी बताइए ना प्लीज। सरकार के पास किसी चीज का एक्शन प्लान नहीं है। सरकार के पास एक ही चीज का एक्शन प्लान है कि किसी मंदिर में मस्जिद ढूंढ लो, उस पर उपद्रव करवा दो, सारी मीडिया का ध्यान डाइवर्ट कर दो, बात खत्म हो जाती है। सर मैंने ये सवाल क्यों पूछा ये भी आपको बता दूं। बागरे साहब सामने बैठे हैं, तापसे साहब भी सामने हैं। तापसे साहब तो खैर शरद पवार जी की पार्टी से हैं, बागरे साहब भारतीय जनता पार्टी से हैं, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र में हर एक को मालूम है, पूरी ब्यूरोक्रेसी को, पूरी सरकार को मालूम है कि अभी जहां जहां बाढ़ आई हुई है वहां पे क्या करना है, जैसी पानी वापस जाएगा उसके बाद क्या करना है, स्कूल्स के जो बच्चे हैं और हर एक को क्या क्या बांटना है, किन मेडिसिन की एकदम आवश्यकता पड़ेगी, एक एक चीज तैयार है सर महाराष्ट्र में। मैं इसलिए पूछ रहा हूं सवाल ये, क्या ऐसी कोई प्लान है उत्तर प्रदेश में सर? नहीं साहब, उत्तर प्रदेश में इस तरीके का कोई प्लान नहीं है। राजीव साहब, प्लान तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि अगर सरकार के पास प्लान होता तो बाढ़ में कम से कम खाद्य सामग्री पहुंचाते आप जी, उनके साथ खड़े होते। जब जिन जिन जगहों पे बाढ़ की स्थिति थी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम पीडीए रसोई चलाएंगे, जब तक इनके घर में पानी है तब तक खाना समाजवादी पार्टी के वर्कर वहां उपलब्ध कराएं। ये जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी को प्रदेश के नेता श्यामलाल पाल साहब ने दे दी, हमारे लोग लग गए। तो साहब, हम लोग तो सेवा करने वाले लोग हैं, हमसे जितना हो सकता है लोगों का सहयोग लेके लोगों की सहयोग करना, यही हम लोगों का एक समाजवादी चरित्र है और इसी चीज की हम एक सामूहिक जिम्मेदारी मानते हैं। कटियार साहब, आज आप ही के एमएलए, एसपी एमएलए पूजा पाल ने जिस प्रकार से इन द फ्लोर ऑफ द हाउस योगी आदित्यनाथ जी का तारीफ किया, उन्होंने समाजवादी पार्टी के एमएलए ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस योगी आदित्यनाथ जी का तारीफ किया कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन इतना जबरदस्त तरीके से यूपी में कर दिया कि पहले कभी नहीं था। बोले कि मैं खुद सफर हुआ, मेरे हस्बैंड को मार डाला था अशरफ जो गैंगस्टर थे, और योगी आदित्यनाथ ने पूरे जो जितने गैंगस्टर्स को खत्म कर दिए, पूरा रिलीफ है, स्पेशली महिलाओं को बहुत बड़ा। तो ये क्या चल रहा है? आप ही के एमएलए फ्लोर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस योगी आदित्यनाथ जी का तारीफ कर रहे हैं, तो क्या है इसका क्या अर्थ समझे हम? साहब, जो तारीफ की गई है, अगर आप उनके शब्दों को कुलकर्णी साहब सुनेंगे तो उसमें उनसे भी कई सवाल खड़े आपको मिलेंगे। वो ये मानते हैं कि अतीक अहमद को उन्होंने मिट्टी में मिला दिया, उन्होंने बदला ले लिया। अब इस तरीके की जो तारीफ है उससे एक दो सवाल पैदा होते हैं कि क्या इस सरकार को और उन लोगों को क्या कानून पे भरोसा नहीं था कि अपराधी को कानून सजा देगा? क्या कानून में अपराधियों के लिए उचित प्रावधान नहीं है क्या? और अगर आप मानते हैं कि सरकार ने बदला लिया है, मोदी योगी जी ने उनको मिट्टी में मिला दिया है, तो क्या वो जिन अपराधियों ने पुलिस कस्टडी में उनकी हत्या की, क्या उस सरकार के प्रायोजित थे? तो ऐसी बात तो समझ नहीं आती कुलकर्णी साहब। प्रदीप नाम्बियार साहब जी। तो प्रदीप साहब, ये बात जो है, इस तरीके की बात पे सरकार को जवाब देना पड़ेगा कल। भाई सरकार कहे कि ये कैसे हुआ है, क्या वो अपराधी सरकार ने इंतजाम किए? नाम्बियार साहब, क्या हुआ? ठीक है, किसी की अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है किसी के साथ, उनके आपसी क्या संबंध है, क्या डील है, क्या समझौता है, क्या मजबूरी है, उसमें हम नहीं जाते डिटेल में।
जी। लेकिन इस तरीके की बातें सरकार के चरित्र में सवाल खड़ा करते हैं। Right. So, प्रदीप जी, so I'll come back to you. So I have to go to तापसे साहब. तापसे साहब, आप ये बताएं, in terms of शरद पवार साहब, सुप्रिया सुले जी, शरद पवार साहब ने भी बहुत क्लियरली कहा है कि राहुल गांधी जी और बाकी जो इंडिया अलायंस अभी इल्जाम लगा रही है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, कि जहां तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, दे आर वोट चोर्स, सो दे हैव स्टोलन आवर वोट्स. Sir, how long do you think this will continue? Because Rahul Gandhi is not giving up. He is coming out with one charge after the other. The BJP says कि ये हार की बुआ रही है आप लोगों से, आप जो भी कर रहे हैं, जैसे अखिलेश यादव जी हो गए, आप हो गए, यानी शरद पवार जी हो गए, अब आदरणीय राहुल गांधी जी हो गए कांग्रेस के, क्योंकि आपको मालूम है कि आप हारने वाले हैं, तो इसलिए अभी से आप शुरू हो गए हैं. महेश तापसे साहब. Rahul Gandhi, Sharad Pawar, and other leaders of the India bloc, I think the entire country should stand for transparency in electoral and democratic process. Yes. Whether it's A party, B party, C party is immaterial. There were parties which are getting elected in the Congress regime where there's a ballot paper and that stamp used to stamp that ballot paper. Even then, Shiv Sena in Bombay used to get elected, BJP used to get elected in other parts of the country, and that was the mandate of the people. So here we see the election commission working in such a way that today the Supreme Court had to tell election commission just a few hours ago that you have to print the names of 65 lakh deleted voters and the reasons for deletion. I think this is a big thappad to the election commission that Supreme Court has given. I mean, one can just imagine the magnanimity of the crisis that has fallen on the entire democratic process in the country. Why only should Sharad Pawar be there? Why only Uddhav Thackeray? Why only Rahul Gandhi? I think Prime Minister Modi, the entire BJP allies should come down on the roads and say, yes, we stand for democracy. Yes, we stand for transparency. Yes, we stand for people's rights. Yes, we stand for constitutional guidelines. So all this kind of thing should. I think. तो तापसे साहब, do you agree with अखिलेश यादव जी? अखिलेश यादव जी says के अगर उत्तर प्रदेश में मुझे आज 350 सीटें भी मिल जाए, 300 सीटें मिल जाए मुझे, मैं फिर भी बोलूंगा बैलेट पेपर पे जाइए वापस. Do you agree with that, sir? People may have their preferences. Ajit Pawar has his preference. We have our preference. But I am saying, is the preference 100% transparent? Yes. Why developed countries, why westernized countries, why progressively democratized countries are still opting for the old system and not the new technologically enabled system? So this is one question which I think the election commission should answer. Na? That is the whole question. If we are not doubting the integrity of the election commission, the process itself is very doubtful. The machine is under doubt. We are not doubting the election commission intention of the election commission. They want to hold free and fair election as per the mandate given to them by the constitution of the country. They are deemed to do so. But the process is under doubt. The machine is under doubt. The VVPAT is under doubt. Now I am told that in the local self-election, VVPAT machines will not be available. No, it won't be. How will I know what you have voted for? That's right. Correct. Tabase sir, one thing is a great thing is this: if there's a doubt, you need to eliminate that doubt. If VVPATs are concerned, where the whole country is putting a question mark on the conduct of the election commission, so it's the right time. If it's not there, you introduce VVPAT. You just said don't local bodies में हम नहीं करते. And second thing I want you to answer, Sharad Pawar साहब इतने senior leader जब एलिगेशन करता है कि दो लोगों ने मेरे को अप्रोच किया, दो व्यक्तियों ने अप्रोच किया और दो व्यक्तियों ने कहा कि हम आपको 160 सीट लेके आते हैं, 160 सीट लेके आते हैं. Now this a senior coming from a very senior leader, the election commission should have immediately gone into action and said we're going to investigate and find out all these kind of charges. A senior leader like Sharad Pawar sahab is doing. You find the election commission back, not moving forward, asking for affidavit from everybody. आप affidavit दो, उसके बाद हम कैसे देखते हो आप तबासे साहब? See, Pawar Sahib has made a very open statement, not hiding, not shying away from the media, in presence of the media, fully aware that it may have some kind of legal consequences. He did not hide the fact that somebody came and met him. We were not aware. I just read it in the papers a couple of days ago. And if he has made a statement, he has definitely some proof to prove that somebody must have met him. Or it may be just generally somebody would have said, 2023 तक मैंने we don't know. I don't know what is the gravity of the entire thing.
But if he has said, I'm sure somebody would have told him that. बट अजीत पवार साहब ने उसको कॉन्ट्रडिक्ट किया, बोले चुनाव के दौरान बहुत सारे लोग आके बड़े बड़े वादे करते हैं, इसको कोई सीरियसली लेता नहीं है. आई माई सेल्फ हैव विटनेस्ड दिस काइंड ऑफ पीपल कमिंग गिविंग दिस फॉल्स. That is exactly what I'm telling you. People come with all kinds of promises. There are people promising, money showering like rain in this country. So all types of promises are made, and political parties and candidates are gullible to such promises. Some may fall prey to them. Some may be smart enough and just say, okay, goodbye, Tata. जी, correct. That's exactly what Pawar Sahib did. Now, let me go to Samir Bhagre Sahab. Samir Bhagre Sahab, two things. One, India has held out. Mr. Modi is not reacting, notwithstanding the most horrible provocations from President Donald Trump. Donald Trump साहब की तरफ से पता नहीं क्या कुछ नहीं बोला गया अभी तक. The very fact that the Prime Minister has not reacted verbally is fantastic. Number two, we have just concluded a deal with Burkina Faso of about $14 billion for the import of sorghum and maize over the next 10 years. That, by the way, has virtually, spread like wildfire all over the American food markets and even in Europe. Number two, as far as our medicines are concerned, we were supplying about 31% of all generic medicines available in the United States of America. Because of Trump's 50% tariff on Indian goods, they have all become 50% more expensive. As a result of which, American citizens are not able to get even simple medicines like paracetamol or a painkiller or Atorlip F or stuff like that. They are not able to get it. And this is only for the main pharmacies. The hospitals themselves are not at all sure as to whatever prescription they write, American patients will actually be able to access those medicines. So do you think Mr. Trump may have may have taken on more than he can chew as far as India is concerned? Do you think in the next round of talks, क्योंकि 25 अगस्त को शायद अमेरिकी डेलीगेशन यहाँ पर आ रहा है for the next round of talks with regard to tariffs, आपको लगता है कि ट्रम्प साहब will withdraw a little bit? Bhagre साहब? Sir, first thing, India is fortunate to have a leader like Honorable Prime Minister Modi ji. Let me explain it why I am saying this. Because when Operation Sindoor was taking place, all the opposition was crying that India is on the back foot. When Pakistan's everything was destroying, Congress and other their supporting parties were saying different things. When the ceasefire happened, they were saying Modi ji did because of the trade deal with Trump. Now, when Mr. Modi has taken a stand, which was from the initial day itself, that we will not compromise on India's interest, whatever people want to say, that people, including the opposition as well as the foreign countries. So, आज जो मोदी साहब ने जो स्टैंड लिया है, वो तो देश के हित में है. तो अभी ट्रम्प साहब ने अपने देश के हित में लिया कि नहीं? Their country is going to judge and their country is going to face the consequences. उसमें क्या होता है सर, ये जो ट्रेड डील्स है, दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग. इट इज नॉट समथिंग दैट मेरा किसी कंट्री के साथ ट्रेड डेफिसिट है इसलिए मैं उस पर ज्यादा टैरिफ लगाऊं. इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग. व्हाट थिंग्स यू नीड इन योर कंट्री. जैसा आज हमारे यहाँ कुछ कंट्रीज से ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, बट वी सडनली डोंट स्टार्ट पुटिंग टैरिफ्स ऑन देम कि हमको उससे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है. यू हैव टू सी द नेशनल इंटरेस्ट. आप क्या इंपोर्ट कर रहे हैं. और एक आज मैं तो ऐसा कहना चाहूंगा कि यूएस का ये जो आज स्थिति हुई है, ये आज की स्थिति नहीं है. इन्होंने क्या किया सर, इतने सालों से इन्होंने एक अपनी हर चीज आउटसोर्स कर दी. पहले मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर दिया चाइना में, और अभी काफी मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में हो रहा है. उसके बाद सर्विसेज इंडिया से ले रहे. सो ये जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो रहा है यूएस इकोनॉमी का और दुनिया भर में, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट चेंज हुआ है इन लास्ट 5-7 years. US used to instigate lot of wars and they used to sell their equipments to the warring countries. अब ऐसा हो गया है कि the defense industry has developed world over. Like France is a big player in defense industry. और to the surprise of USA in this Operation Sindoor, भारत ने जो अपने डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड आत्मनिर्भर भारत के बेसिस पे जो डिफेंस इक्विपमेंट बना, they have performed exceedingly well and they have countered the Chinese as well as US equipment.
सो इसमें क्या हो गया, ट्रम्प साहब थोड़े बौखलाए गए एंड ही वॉज ट्राइंग टू टेक क्रेडिट फॉर द सीज फायर विच वॉज अ नॉन एग्जिस्टेंस थिंग। जब किसी आदमी को ये बोलना पड़ता है कि मेरे को 30 बार बोला उन्होंने कि मैंने सीज फायर किया, अरे भाई साहब आप दुनिया के सबसे पावरफुल देश के प्रेसिडेंट हो, अगर आपने किया है तो इट कुड हैव बीन ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द व्हाइट हाउस इंस्टेड ऑफ यू सेइंग दैट। तो एक अगर आदमी बोल रहा है बार बार, तो ही इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट ही इज डीलिंग विद अ सीजन्ड प्लेयर लाइक मोदी जी। आज अगर अपोजिशन पार्टी का जो रोना था ट्रेड के वजह से सीज फायर किया, एक भी इनका स्टेटमेंट नहीं आ रहा। सो अपोजिशन पार्टीज आर चेंजिंग देयर गोल पोस्ट, बट मोदी जी का एक ही गोल पोस्ट है, दैट इज द इंटरेस्ट ऑफ आवर कंट्रीमैन एंड इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन। लेकिन एक चीज है सर बागरे साहब, एक छोटी सी चीज आपको बता दूं मैं कि आज ही दो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, one from France and one I think from Australia, and the third is Michael Cohen, who used to be security advisor in the Pentagon during Joe Biden's regime. इन तीनों ने एक चीज कही, सुनने वाली जानकारी है सर, तापसे साहब जरा ध्यान से सुनिए, और कटियार साहब बहुत ध्यान से सुनिए। इनका ये कहना है कि मिनिमम उनको जो जानकारी मिली है, मिनिमम ये 5 और 1 जो एयरक्राफ्ट हमारे एयर चीफ साहब अमृतपाल सिंह ने जो बताया है वो तो है ही, बट एक्चुअली वो बंकर के अंदर जहां पर F-16 इनके पार्क्ड थे, about 5 to 6 F-16s have been destroyed on the ground. That's what these guys say. We have not said it. And they say Indian Air Force is not revealing the true figures out of respect for the USA, because at least 6 more F-16s have been destroyed during Operation Sindoor. Sir, आप कुछ बोल रहे थे, please finish. बागरे साहब, just wanted to tell you that. बोलिए सर। राजीव जी, मैं वही कहना चाहता था कि जो इंडियन डिफेंस सिस्टम है, मोदी जी की लीडरशिप के वजह से जो आत्मनिर्भर भारत हुआ है, उसके कारण ये सब पॉसिबल हुआ है। एंड सर हमारे एयर चीफ ने काफी बार क्लैरिफाई किया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने क्लैरिफाई किया, व्हेन यू गो फॉर अ वॉर देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। आप ये नहीं, हमारे तो एयर कॉमोडोर भारती जी ने कहा था, आवर जॉब इज टू फायर, वी डोंट हैव टू काउंट द बॉडीज। आप मुझे बताइए, जब हमारे एयर चीफ ने उस दिन स्टेटमेंट दिया कि व्हेन वी हैड अ वेरी ह्यूज सक्सेस इन बालाकोट एंड स्टिल आवर कंट्रीमैन वेर नॉट बिलीविंग अस एंड वी वेर हैविंग दैट इंटेलिजेंस कि हमने कितना बड़ा नुकसान किया। सर एक डिफेंस फोर्सेस के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है अपोजिशन पार्टीज का। मैं सही में आई फील पिटी दैट a person like air chief of our country has to say and feel sorry that we could not have that evidence of Balakot। और ये मतलब हमको प्रूफ चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ चाहिए, इस चीज का प्रूफ चाहिए, उस चीज का प्रूफ चाहिए। और मेरे समाजवादी के मित्र भी कुछ कह रहे थे बाढ़ का। देखिए भाई साहब, और मैं राजीव जी आपको भी बोलना चाहूंगा, वो जो चीफ मिनिस्टर साहब योगी जी ने पूरे दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ मेला जहाँ 66 करोड़ लोग ने अटेंड किया, वो हैंडल किया है। सो आप उनकी बाढ़ की मैनेजमेंट पे आप क्वेश्चन कर रहे हैं। आई एम फीलिंग वेरी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज समथिंग विच शुड नॉट बी डन, बिकॉज ही इज एस एडमिनिस्ट्रेटर, देयर इज अ स्टेट डिजास्टर रिलीफ अथॉरिटी, देयर इज अ नेशनल डिजास्टर रिलीफ अथॉरिटी, और मोदी जी के राज में डिजास्टर मैनेजमेंट इज ऑफ द हाईएस्ट स्टैंडर्ड, प्रोफेशनलिज्म आ गया है, एवरीथिंग इज देयर। सो सेइंग समथिंग एंड पासिंग स्वीपिंग कमेंट्स इज नॉट देयर। और जस्ट एक महेश तपासी जी ने एक पॉइंट रेस किया कि शरद पवार साहब ने ये चीज बोली है तो ही मस्ट हैव सेड विद लॉट ऑफ सीरियसनेस। लेट मी रिमाइंड हिम दैट इन द सेम स्टेटमेंट ही सेड, आई डोंट नो रिमेंबर द नेम्स ऑफ द पीपल, आई डोंट हैव द नंबर्स ऑफ द पीपल, एंड he further said that I took them to Rahul Gandhi. So a very secured leader of opposition, a very senior and seasoned leader like Sharad Pawar ji is taking someone to Rahul Gandhi जिनका उनको नाम भी नहीं पता। तो यही शरद पवार साहब है सर। इन्होंने जब मुंबई के बम धमाके हुए थे, उन्होंने बोला था कि मैंने एक एडिशनल बॉम्ब ब्लास्ट बोला हुआ है जस्ट टू गाइड। हमारे समाज में कोई ये नहीं होना चाहिए। तो शरद पवार जी कब क्या बोलते हैं और क्यों बोलते हैं सर, इट इज डिफिकल्ट टू figure out, so let it be that way. The same Sharad Pawar साहब, the same Sharad Pawar साहब, अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, जितने लीडर्स है, question the foreign policies. Sharad Pawar साहब said definitely, भले सुप्रिया सुले जी कहे along with the delegation asked by Prime Minister Modi, she on national duty, she thought it's a national duty. पवार साहब ने फॉरेन पॉलिसी पर प्रश्न लगा दिया, अखिलेश यादव जी ने फॉरेन पॉलिसी पर प्रश्न लगा दिया, राहुल गांधी जी ने फॉरेन पॉलिसी पर प्रश्न लगा दिया। डू यू थिंक वी नीड टू rethink? Do you think that Modi ji has made some mistakes somewhere? Do you think then time to reconcile? How do you see that, Bakri sir?
Sir, again it is a laughable allegation when Mr. Modi and Mr. Jaishankar has clearly explained in the parliament that out of 193 countries, only 3 countries have supported Pakistan. No one has opposed our country. There was a resolution passed by BRICS, there was a resolution passed by UN, there was a resolution passed by Quad. Everyone has supported India's right to defend itself and attack the basis of terrorism. तो मुझे ऐसा कहना है कि सर ये किस तरीके का फॉरेन पॉलिसी राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं। वो क्या ये चाहते हैं कि उनके पार्टी ने जैसे चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू साइन किया वैसे हम जाके पाकिस्तान के साथ एमओयू साइन किए? Sir, there are two कांग्रेस things which पार्टी arise over here. There are two things which we know what Jaishankar said. I'm sorry, कटियार साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास, एक सेकंड बस. This is very very important. Sir, there are two things which arise over here which are very very important. If we were very serious about our foreign policy, why is it? Now this is something which I really need to know. Why did we appoint a lobbyist in the White House only on May 31st? जेम्स मिलर को हम लोगों ने अपॉइंट किया एज आवर लॉबिस्ट. हम उनको $1.5 लाख दे रहे हैं महीने के. द कॉन्ट्रैक्ट इज $1.5 लाख per month. We have appointed him on May 31st. The Pakistanis appointed the firm Javelin, which is managed by 2 former Trump employees, including his ex-bodyguard. They appointed him in February this year. No wonder Trump is speaking their language, sir. Why were we so late? Bagre Sahab, this is a genuine question. Why were we so late in appointing an Indian lobbyist? Because usually we used to be, first off the blocks. Right from the time of Manmohan Singh, it was carried on during the time of Sushma Swaraj ji. Why is it that Jaishankar Sahab or whosoever delayed it, why did we delay appointing a lobbyist over there? We need to get our point across. Sir, you know how the American system works. There are official lobbyists who work for each country. Our lobbyist is a lawyer called James Miller who used to work with Trump but now is an independent lobbyist. पाकिस्तानियों ने जो फर्म है Javelin उसको अपॉइंट कर दिया था फरवरी में सर, और वो Javelin कंपनी जो है एक्चुअली ट्रम्प साहब की खुद की कंपनी है. अब आप बोलें सर, बागरे साहब. Sir, do you think that foreign policy works on appointing of lobbyists? Sir, foreign policy is a much deeper exercise where the relationships are built, where our common interests are taken. And sir, आप एक समझ लीजिए world geopolitics में foreign policy over the last few years have been dictated by the interest of that particular nation. आप मुझे बताइए जब पाकिस्तान जैसा टेररिस्ट कंट्री को यूएस सपोर्ट कर रहा है, क्यों सपोर्ट कर रहा है? बिकॉज इट वांट्स दैट ईरान के आजू बाजू में उनका बेस मिले. They want to have something against Afghanistan. तो it is all because of the geopolitical situation. और आज मुझे बताइए यूएस ने भारत के खिलाफ ऐसा कौन सा एक्ट किया हुआ है जिससे हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई? ये जो टैरिफ वॉर की आप जो बात कर रहे हो, टैरिफ इज समथिंग. और टैरिफ किस पे लगा रहे हैं? हम तो आज यूएस इज कंसिडरिंग इंडिया एज अ पावरफुल कंट्री. दैट्स व्हाई इट इज पुटिंग. But they also say that India is our specially favored nation or something like that. That's what they've also said, that India's status as a special ally of the United States remains unchanged. This is what the statements come out. But I find But I want to know, did Prime Minister Modi go beyond his brief when he said, "Ab ki baar Trump sarkar, Namaste Trump," or howdy Modi? क्या एक प्राइम मिनिस्टर को अपने दायरे से बाहर जाके outside the boundaries stretch himself to convince one particular person? This was going beyond boundaries. Do you think that it was right? There is something where we have failed कि हमने boundaries exceed कर दिया in a wish to get Trump with us, and that has failed very miserably. Because कोई भी प्रधानमंत्री कोई भी इलेक्शंस को दूसरे देश के इलेक्शन को इस प्रकार से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करते. बाकरे साहब, प्रदीप जी, वो कोई इलेक्शन इन्फ्लुएंस करने की बात नहीं है. आज मुझे बताइए जब ट्रम्प साहब भारत के फेवर में बात कर रहे थे तो कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन पार्टी उनके खिलाफ बात कर रहे थे. आज जब वो भारत के खिलाफ बात कर रहे हैं तो अपोजिशन पार्टी उनके फेवर में बात कर रही है. तो मेरा ऐसा मानना है कि मोदी जी अगर हमारे देश के लिए कोई चीज अच्छी है, अगर उनको लगता है कि ट्रम्प साहब हमारे देश के लिए अच्छे हैं, तो उन्होंने उसके बारे में बोला. और इसके एक स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन से वहां तक ले जाना कि वी आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस सम इलेक्शन, तो ये आज जो हिंदुस्तान में हमारे ऊपर आरोप कर रहे हैं
वो तो आप कल जाके वो वहां के भी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी पे आरोप करेगी सर, कि लेकिन भाई एक चीज आती है सर, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सर एक चीज आती है सर, बहुत बहुत ये, और ये मैं पूछूंगा आगे कटियार साहब से। सर जिस तरीके से ट्रंप अभी लेफ्टिनेंट, जो वो क्या नाम है उसका, फील्ड मार्शल क्या, आसिम मुनीर, और वो शहबाज शरीफ और वो बिलावल भुट्टो, उनको जिस तरीके से अभी बढ़ावा दे रहा है, मुनीर साहब अमेरिका में जाकर के बोलते हैं कि परमाणु युद्ध हो जाएगा हिंदुस्तान के साथ, और ही इज यूजिंग अमेरिकन सॉइल, ही इज थ्रेटनिंग अ कंट्री, थ्रेटनिंग अ फ्रेंडली कंट्री, यूजिंग अमेरिकन सॉइल सर। और उसके बाद एक और चीज होती है, जरा ध्यान से, मैं आ रहा हूं तापसे साहब, आपके पास आता हूं एक सेकंड में। अब सर, they ban the BLA, they declare it a terrorist organization, and from whatever we are hearing, the next step is the Americans might sponsor the Pakistanis to go to the FATF and try to declare India a terrorist nation. Sameer Bhakre साहब, तब हम क्या करेंगे? We have to be prepared for it. I am not saying it will happen. I am saying we have to be prepared. भाकरे साहब बोलिए। देखिए सर, जो राजीव जी, जो ट्रम्प साहब जो चीजें कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, अब देखिए पहले जब आसिम मुनीर जी वहां पर जाके आए थे, बहुत हल्ला हुआ था कि उन्होंने ट्रम्प साहब के साथ लंच किया। अब मुझे बताइए कि अगर आसिम मुनीर जो एक रोग मिलिट्री कमांडर है, ही इज समवन वेरी सीनियर इन यूएस एस्टेब्लिशमेंट, सेड दैट ही इज ओसामा बिन लादेन इन अ यूनिफॉर्म। सो मेरा ऐसा मानना है कि उस लंच के बाद क्या हुआ, सर माइकल कोहेन सेड दैट, माइकल कोहेन सेड दैट, यस, उस लंच के बाद यूएस अटैक्ड ईरान। सो देयर वाज अ टैसिट अप्रूवल फ्रॉम पाकिस्तान दैट दे विल अलाउ द एयर स्पेस ऑफ पाकिस्तान टू बी यूज्ड फॉर अटैकिंग द ईरान। सो आप ये ट्रम्प साहब का जो भी है ना सर, पाकिस्तान प्रेम जो है, अब जो सो कॉल्ड है, he has got his business interest in Pakistan now. Yes. Cryptocurrency का issue है, $20 billion. Yes. और let me say that the US public is against his policies now. US entire defense establishment is going to be against him. So what Mr. Trump is doing is he's just trying that the entire world should fall at his feet, like Pakistan does, like other country does. But हिंदुस्तान एक अपना सॉवरेन मुल्क है सर, और मोदी जी ऐसे नहीं है कि कोई किसी को भी सरेंडर कर देंगे जब तक अपने देश का हित नहीं है। अगर देश का हित है तो मोदी जी किसी से गले भी मिल लेंगे, लेकिन अगर देश के हित में नहीं है तो मोदी जी, फिर वो कोई भी ताकतवर इंसान हो, मोदी जी ने ओपनली कहा है कि वॉट एवर कॉस्ट आई विल हैव टू बियर, बट आई विल प्रोटेक्ट माय फार्मर, स्मॉल बिजनेसमैन। So that kind of leadership Tapse Saab had raised his finger. You wanted to say something, sir? Please go ahead, Tapse Saab. To tell all the panelists and all the viewers, say, as far as India and Pakistan are concerned, we have got bilateral issues. Okay, we have been fighting undeclared war from 1947 right up to 2025 April 22, when Operation Sindoor, when the Pahalgam incident took place and when the Operation Sindoor took place. So nobody questions the integrity of the government as far as retaliatory measures of the government are questioned. But there has to be a parliamentary debate. Every war, I think the 1962 Indo-Sino-China war, Indo-China war was there, India-Pakistan war was there in the early 70s. So everything was debated, declared in a special session called by the government. By the then government, yes. Yeah, but then why is it now that we want to keep things under wrap? The country has a right to know. Every citizen has a right to know what was the status of my armed forces. Why does an Indian armed forces officer, has to make a plea across the 7 seas and say that yes, we are facing a crunch in some kind of repair work and maintenance work? I don't want to name the gentleman. Where it was spoken. Yes. So all these things are also, then we are proud. We are proud as a citizen of this country that my brave hearts went deep inside. They destroyed 4, 5, 6, 8, 10 or whatever F-16 they might have decided. And then government has a certain role, diplomatic role to play with the government. Jaishankar ji has played it very well. Entire MEA spokesperson have played a very diplomatic role. We are very proud of that. We at the entire opposition went and said loudly that the country stands behind the government. The government means the current government. Whatever Mr. Modi has done as the Prime Minister of the country, we stand behind them. We went to explain our stand. Quite true. What happened
What happened? You see a soft loan being given to Pakistan immediately after the ceasefire. The ceasefire gets declared in the Western Hemisphere, and we come to know 24 hours later. After 24 hours later, we say, okay, yes, it's a ceasefire. So these things are not expected. We respect the chair. The Prime Minister's chair is the most important chair in this country, and we respect, every citizen of this country should respect. But I respect my Prime Minister to the core, but I expect him to take leadership role. Howdy Modi is election gimmick that he has done very well, but after this 25% tariff and 50% tariff, we see some retaliation. But- And now but today, Trump is threatening on more the tariffs. US soil, Bilawal Bhutto is saying something. Defense Minister of Pakistan saying that there's all these war mongering dialogues that they're coming from there. And nobody says a word. Till this. And no one has said a word. The US government has not said a word. So where is this friendly Howdy Modi gone? Yes, it's gone. But it's actually gone. Let's be very We clear, have it's a right to gone. question. If we are not going to question our own people, the Prime Minister is my Prime Minister. Trump is not my Prime Minister. My Prime Minister is Mr. Modi. So I have got every right to question him. How are you And going to Mr. react? Tabase, I agree with you. Mr. Tabase, I agree with you entirely. आपके साथ मैं बिल्कुल सहमत हूँ. यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये भी है, मैं आपके पास आता हूँ, कटियार साहब, जरा ध्यान से सुनिए. 1971 की लड़ाई में सारी ऑपोजिशन ने, इंक्लूडिंग कम्युनिस्ट, इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय जनसंघ थी उस वक्त, सब लोगों ने इंदिरा जी का समर्थन किया था. डीएमके ने, एडीएमके ने, सब लोगों ने, आरएसपी, जितने फॉरवर्ड ब्लॉक, जितने भी लोग थे, सब लोगों ने समर्थन किया. तो लेकिन उस वक्त की सरकार ने एक एक फिगर सामने दिया कि भाई हमारे इतने टैंक खोए, हमारी इतनी कैजुअलिटीज हुई, इतने लोग हमारे शहीद हुए, और हमारे तकरीबन 49 एयरक्राफ्ट वी लॉस्ट इन द 1971 वॉर. 1971 की जंग में हमारे 49 एयरक्राफ्ट हमारे उड़ा दिए गए पाकिस्तानियों द्वारा. उसके बावजूद भी वन द वॉर. सीधी बात है ना सर. इससे क्या फर्क पड़ता है कितने हवाई जहाज गिरे, कितने हवाई जहाज नहीं गिरे? आपको लगता नहीं है कटियार साहब अभी सरकार को एक स्टेटमेंट देनी चाहिए? क्योंकि वी आर अ बिग कंट्री. मेरा ये कहना है कि सर भारत एक बहुत बड़ा देश है. यू लुक एट व्हाट द अमेरिकन एनालिस्ट आर आल्सो सेइंग, हु आर अपोज्ड टू ट्रम्प ऑफ कोर्स. वो ये कहते हैं कि ट्रम्प को क्या लगता है, अरे 5000 साल पुरानी सभ्यता है, इन्होंने ना जाने कितने ट्रम्प देखे हैं, कितने आए हैं, कितने गए हैं. भारत को ट्रम्पेट बजा दिया. हाँ, इनके, जी बिल्कुल, ट्रम्प के, या एग्जैक्टली ट्रम्प के ट्रम्पेट से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. एब्सोल्युटली ट्रू. तो आपको लगता नहीं है कटियार साहब कि एक स्टेटमेंट आनी चाहिए कि हाँ भाई ये लॉसेस थे, और ये हमारे जो सोल्जर्स हैं, जिनमें से एक, बाय द वे, मैं ये क्यों पूछ रहा हूं सर, ध्यान से सुनिए, वो एक आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर है सर पूना में, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं. दे आर डूइंग द बेस्ट वर्क पॉसिबल. किसी भी फौजी के अगर कोई हार्ट चला जाता है, एम्पुटेट करना पड़ता है, लेग एम्पुटेट करनी पड़ती है, दे रिप्लेस देम. उनकी रिप्लेसमेंट जो होती है इतनी खूबसूरत होती है, इतनी खूबसूरत होती है कि अगर किसी का मान लीजिए हाथ चला गया है, पैर चला गया है, उसको 6 महीने के बाद यह महसूस भी नहीं होता है कि मेरे पास एक पैर नहीं है. दे हैव डन सच वंडरफुल वर्क. वहां पर हमारे एयर चीफ गए थे. एक सार्जेंट है इंडियन एयरफोर्स के जो ग्राउंड स्टाफ में थे, वो ही वाज नॉट अ फ्लायर. उनके दोनों हाथ चले गए हैं और उनको अवार्ड दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान. तो इसका मतलब यह हुआ, क्या कोई पाकिस्तान का बम यहां पर गिरा? अगर गिरा तो उसका क्या डैमेज था? आपको लगता नहीं कि देश को, मतलब अब तो जानकारी मिलनी चाहिए, जहां तक मैं समझता हूं. कटियार साहब. जी राजीव साहब, बिल्कुल, ये हर जिम्मेदार सरकार का और एक अच्छे राजनेता का ये कर्तव्य है कि अपनी जनता को सही समय पे सब कुछ सही से बताए. और पूरा देश ये उम्मीद करता था कि देश को पूरी सही विधिवत जानकारी मिलेगी और उस पे संसद में विस्तार से चर्चा भी होगी. लेकिन पूरे देश को निराशा हाथ लगी. उस तरीके की कोई चर्चा नहीं हुई. और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र अभी बात जो कह रहे थे, उन्होंने बहुत सारे सवाल जवाब दिए और उन्होंने कहा कि क्या फर्क पड़ता है. हमारे प्रधानमंत्री ने सही समय पे जवाब दिया और ट्रम्प, क्योंकि फायदे की बात है, क्रिप्टो करेंसी की बात है और उनके अपने व्यापार, एयर स्पेस, बहुत सारी बातें, कहा कि इस तरीके की उम्मीद पे पाकिस्तान के हित के लिए
अमेरिका के प्रधान राष्ट्रपति ने इस तरीके का बयान दिया। क्या भारत और भारत के नेता, क्या ये इतना हल्का देश है कि किसी के फायदे के लिए आप हमारा इस्तेमाल करेंगे और हमें हल्के में चलाएंगे? क्या यही है भारत का मामला? तो इस तरीके से अगर किसी को प्रभावित करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए आप हमारे प्रति इस तरीके का रवैया अपनाएंगे तो भारत की जनता इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी राजीव जी। ये ठीक नहीं है, एक बात। दूसरी बात, आप इतने अच्छे संबंधों की बात करते रहे, 24-25 बार ट्रंप ने बोला, इस सरकार ने तो कोई जवाब नहीं दिया। हमने रुकवाया, व्यापार की वजह से रुकवाया, धमका के रुकवाया। इस तरीके के जवाब आते रहे, इस तरीके के बयान आते रहे अमेरिका से। पूरा देश जानना चाहता था कि हकीकत क्या है, ये लड़ाई कैसे रुकी। और अगली बात, आप कहते हो कि क्या बिगाड़ दिया ट्रंप ने वो लगा के। भाई, मुझे तो इस देश का एक एक आदमी शर्मिंदा था जब आपके इस देश के नागरिकों की बेड़ियां डाल के अमेरिका ने भेजा था हमारे देश में। हमारा सर झुक गया था शर्म से कि क्या है ये। छोटे छोटे देशों ने विरोध कर दिया, इंडिया उसका जवाब नहीं दे सकी। यही है मोदी जी का 56 इंच का सीना। भाई, देश के अपमान से इस देश का एक एक नागरिक अपने को अपमानित महसूस करता रहा है। तो देश के साथ विदेश नीति, देश का नेतृत्व, ये इस समय बहुत विपरीत परिस्थिति में है। और उसके पीछे राजीव जी एक बड़ी मानसिकता है कि जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो। अरे चुनाव तो हम इलेक्शन कमीशन को साथ में मिलकर जीत ही लेंगे, जनता क्या कर लेगी? जनता अगर हमारे खिलाफ भी है तो क्या फर्क पड़ता है? हमें चुनाव जीतना आता है। और बार बार एक सवाल कह के भारतीय जनता पार्टी के लोग नकारते रहे कि अगर ये हरियाणा के किसान मेरे खिलाफ है तो क्या हुआ, चुनाव तो हमने जीत लिया। अभी पानीपत की एक पंचायत का एक परिणाम आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, 3 साल बाद उसका वही मशीन, वही वोटिंग मशीन से बेईमानी करके जीता था। सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्शन दिया कि आप करो। हम इस बात को जानते हैं कि सरकार आम आदमी के प्रति कतई जिम्मेदार नहीं है, संजीदा नहीं है। वो जो एक कर्तव्यनिष्ठ जो मनोदशा होती है, जो माइंडसेट होता है। हमने चंडीगढ़ में जिन लोगों ने बेईमानी कराई, बाद में वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद, कोर्ट के बीच में आने के बाद वो हुआ, जो बेईमान थे वो आज भी खुले घूम रहे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जो हालत जहां पे लाके खड़ी कर दी है, आपने भी अखिलेश यादव जी का जो बयान लिया था, हम आज भी इस बात को मानते हैं राजीव जी कि जिस व्यवस्था पे जनता को हिस्सा ना, हम भरोसा ना हो या एतबार ना हो, वो व्यवस्था कैसे स्वीकार की? भरोसा करते नहीं है कटियार साहब, आप भरोसा करते नहीं है। ये चार्ज है बीजेपी का। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब कहता है कि कुछ सीज फायर हमने किया है, अब जब अमित शाह कहते हैं, राजनाथ सिंह कहते हैं, तो आप विश्वास नहीं करते। राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी बार बार पहले पूछते राफेल कितना गिरा, कितना हमारा जहाज गिरा, अब बयान क्यों नहीं करते? एयर चीफ मार्शल को कहना पड़ा कि हमने वहां उनके 6 जहाज गिरे हैं, 5 गिरा है और 1 हैंगर में एवैक गिरा है। तो आप विश्वास क्यों नहीं करते? आप पाकिस्तान के बयान को विश्वास क्यों करते हो? आप यूएस ट्रंप का विश्वास क्यों करते हो? यह बीजेपी का पूछना है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल रहे, डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे, एयर चीफ मार्शल बोल रहे, इन पे आप विश्वास क्यों नहीं करते? आखिर कटियार साहब। नहीं, हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करना चाहते हैं। एक किसी भी बात का, कहीं एयर चीफ मार्शल बोलते हैं, कहीं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहीं कुछ बोलते हैं, कुछ सरकार के डिप्लोमेटिक लोग बोलते हैं, उनके बयान जब अलग अलग आते हैं, उनकी चिंताएं अलग अलग आती हैं। तो हम इस देश के जनप्रतिनिधि हैं, हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। जनता की आवाज, जनता की भावनाएं, जनता की चिंताएं हम सरकार के सामने खड़ी करना, यही तो हमारा एक जिम्मेदारी है नामयाब साहब। हम उस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करते हैं। सरकार किसी भी चीज में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने के बजाय हर बात को छुपाने का जो प्रयास करती है, इसे ये सही तरीका नहीं है। यही बात तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये ठीक नहीं है। आप सही सही बताएं, हम सब लोग आपके साथ हैं। जब इस देश के साथ ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो भारत के हर राजनेता ने जाके कहा कि हम सरकार के साथ हैं, करिए। और साहब, आप ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, इसके बाद पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट को आप वहां पे बता देते हैं कि साहब हम कर रहे हैं, आप अपना बचा लें। इस तरीके के जब बयान आते हैं तो देश की जनता
ये महसूस करती है कि ये आपने जिम्मेदारी भरा, ऐसे जिम्मेदारी का अपना परिचय नहीं दिया है, देश के साथ सही फैसले नहीं लिया। मोदी जी को बोलना पड़ा कि अखिलेश यादव जी ऑपरेशन महादेव पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है, क्या हम फोन करके पूछे अखिलेश जी को कि कब मारना है? तो क्या इतना विश्वास नहीं है कि अगर हमारे फौज ऑपरेशन महादेव किया है तो महादेव पर भी आपने प्रश्न चिन्ह उठा दिया? यह मोदी जी का कहना है, पूछना है। मुझे नामबियार साहब याद नहीं है, एक ऑफिसर्स का ये भी बयान आया था कि हमें कुछ अपने देश की सेना का कुछ नुकसान जो हमें खोना पड़ा, अगर पॉलिटिकल डिसीजन सही समय पे होते तो ये नुकसान बचाए जा सकते थे। आप भी याद होगा कि एक बयान एक ऑफिसर्स का है, ये मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है। So in any event, I'll go to Bagre Sahab. Then I'm coming to you, Tapse Sahab. And this is a piece of information for all of you. 1.5 hours ago, 1.5 घंटा पहले, I don't know whether you are aware of this. I'm sure Tapse Sahab must be aware, Bagre Sahab must be aware because both of you are connected to the financial world. I don't know if Katiyar Sahab is aware or not. There's something called Standards and Poor. I don't know whether you are aware of this. Standards and Poor, they publish ratings with regard to countries. India was at BBB minus up till now. Today the ratings have come out. In spite of Mr. Trump's 50% penalty on us, India has been upgraded to BBB. And the outlook they have said is very stable for India. भारत की जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक आउटलुक है वो बहुत स्टेबल है और इंडिया को अपग्रेड कर दिया गया है BBB माइनस से BBB पर. That is one. Number two, the transfer and convertibility assessment that was at BBB plus has also been upgraded to A minus. और यही स्टैंडर्ड एंड पुअर है जिसने अमेरिका की रेटिंग को, आप जानते होंगे बागरे साहब, दे हैव जस्ट डाउनग्रेडेड इट. सो सम गुड न्यूज एज फार एज इंडिया इज कंसर्न. अब बागरे साहब आप बताएं, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी, व्हाई डोंट वी जस्ट रिवील व्हाट हैपेंड? आई मीन, if we lost something, so what? We know we destroyed over 19 bases. We know we have destroyed so many aircraft. We know, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान का भारत से के कोई तुलना ही नहीं है सर. तो why aren't we revealing everything? आप बताइए. Unless there is some reason that maybe Operation Sindoor is still going on and so on and so forth. We don't want to reveal everything. बोलिए बागरे साहब, please. Rajiv ji, tell me one thing. What is not revealed? We have revealed after the operation was over कि पाकिस्तान में कितना एयर बेसिस पे अटैक हुआ, कितने टेररिस्ट बेसिस पे अटैक हुआ, कितने प्रोबेबल टेररिस्ट मारे गए, कितने उनके एस्टेब्लिशमेंट पे अटैक हुआ. उसके बाद हमने कैटेगोरिकली ये बोला कि देयर इज नो लॉस ऑफ लाइफ एज फार एज ड्यूरिंग द ऑपरेशन इज कंसर्न, बट देयर इज अ लॉस ऑफ लाइफ व्हेन देयर वाज अ क्रॉस बॉर्डर शेलिंग. वी हैव ऑनर्ड आवर सोल्जर्स, वी हैव ऑनर्ड आवर सिविलियंस, वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट. तो मुझे इस बात का आश्चर्य है कि अपोजिशन पार्टी में आज माननीय समाजवादी पार्टी के स्वर्गीय मुलायम सिंह जी खुद डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, महेश तपासी जी के भी, शरद पवार साहब भी डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं. तो इन लोगों के तरफ से ऐसे बयान आना इन्हें एक बेहद मतलब आई कैन से इट सरप्राइजिंग. दे शुड अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग हैज बीन डिस्क्लोज्ड and what is not disclosed is in the interest of the country which has not to be disclosed. So आज अगर कल कोई ऑपरेशन होता है तो इनको तो वॉर कंट्रोल रूम में सभी अपोजिशन लीडर्स को बैठाना पड़ेगा कि देखिए भाई आप मिनट टू मिनट देखिए कि क्या हो रहा है. सो नो कंट्री और नो सुपर पावर लाइक जो हम लोग है आज, ऐसी कंट्री में ऐसे अपोजिशन में भी सर दे शुड शो सम मैच्योरिटी. व्हाट इज नॉट डिस्क्लोज, व्हाट इज, अरे पहले आप पूछ रहे थे कि कितने एयरक्राफ्ट गिरे, आप पूछ रहे कि अभी पाकिस्तान के 5 गिरे, 6 गिरे, 7 गिरे, और हमारे राजनाथ सिंह ने भी ये है कि भैया हमने एग्जाम पास किया है, कितनी पेंसिल टूटी या पेन टूटा उससे क्या मतलब है. एंड Sir, I can say this right now without fear of contradiction. Today is also 14th of August. By the way, today is for us. It is not just Pakistan's Independence Day. Today is Partition Remembrance Day. I come from a family which came from that side, and our family, like all the Punjabis living on that side, we suffered more than anybody else. Today is also Remembrance Day. मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के मिनिमम 11 के करीब एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हुए हैं, मिनिमम 11. I can tell you that right now from my own sources. Anyway, बागरे साहब please finish, then I have to go to तपासे साहब. बोलिए सर, तपासे मैं वही बागरे साहब please. मैं वही बोल रहा था राजीव जी. आई कैन अंडरस्टैंड द पेन ऑफ पार्टीशन, उसके लिए कौन जिम्मेदार थे, क्या सर्कमस्टांसेस थे, दैट इज अ सेपरेट डिबेट विच वी कैन डू एट अ लेटर डेट. बट मेरा ऐसा कहना है कि जब हमारे डिफेंस फोर्सेस ने इतना
डिटेल में बताया कि वो फर्स्ट स्ट्राइक वाज ऑन टेररिस्ट बेसिस, इट वाज नॉन एस्केलेटरी, सेकंड वाज इन रिस्पांस टू द एस्केलेशन विच पाकिस्तान डिड। सो इससे मैच्योर जवाब मेरे को नहीं लगता दुनिया की कोई फौज, दुनिया में कोई एग्जांपल होगा, क्योंकि यूएस भी जब अटैक करता है तालिबान या ईरान में, सो दे डोंट सी व्हाट सिविलियन कैजुअलिटीज आर गोइंग टू डू, कितनी सिविलियन कैजुअलिटी होने वाली है। सो इतनी अच्छी और इतनी मैच्योर फौज है, और फौज के सभी लीडर्स ने बोला है कि देयर इज अ पॉलिटिकल विल, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू डू, द डिफेंस फोर्सेस वर गिवन अ फ्री हैंड टू डू व्हाट एंड चूज द टाइमिंग ऑफ देयर स्ट्राइक। इसके बाद भी अगर कोई अपोजिशन पार्टी बोलती है कि ये डिस्क्लोज नहीं किया, देन आई हैव टू से इट्स वेरी पुअर ऑन देयर पार्ट एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू डू पॉलिटिक्स ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। बाकर साहब, There is राहुल गांधी no जी, politics. Yeah. There is no politics. जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ शंग्रीला डायलॉग्स में बताते हैं कि there have been losses after, this is much after the entire Operation Sindoor, we expect the same to be debated, to be told to the entire parliament. It can be figured, you don't need to disclose, it can be, you know, In it can general. be It can be in itself. general, yes. But Don't you think that every in all party meetings parliamentarian it was is a discussed? representative of the people of the nation, and hence he has every right to know what has happened. The aircrafts may have got destroyed or some other casualties may have happened. Everybody has a right to know, and if it's a sacrifice by the people of this country, whoever is sitting in that aircraft of the Indian Air Force, and if he has It was clarified 10 times by the defense forces that all our pilots were back safely. What more you want? what more you want, Mahesh ji? डिस्कशन की मांग करना गलत है क्या? मुझे आप बताइए। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि पूरा पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन की पार्लियामेंट में मांग हुआ ना करना सर, गलत है डिस्कशन क्या? तो आप हुआ। 16 घंटे का ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सुप्रिया सुले जी बोली, राहुल गांधी जी बोले, जवाब पूछ रहा है जो इंदिरा गांधी के समय से दिया जा रहा है, जो पंडित नेहरू के समय से दिया जा रहा है, तो आज क्यों नहीं दिया जा रहा? क्यों नहीं दिया जा रहा जवाब? लेकिन शरद पवार साहब ने शायद नहीं बोल दिया था, इसमें डिस्कशन नहीं होना को चाहिए। अपना काम करने दीजिए ना। लेकिन देश के रक्षा मंत्री है, देश की पार्लियामेंट है, देश का फाइनेंस मिनिस्टर है, देश की एस्टेब्लिशमेंट है, पूछ सकता है जवाब। लेकिन राजनाथ सिंह जी ने डिटेल्ड रिप्लाई दी थी ना सर, तब से साहब ये तो डिटेल्ड रिप्लाई दी है। उन्होंने कहा ऑल आवर पायलट्स आर सेफ। मच लेटर राहुल गांधी जी कब से पूछ रहे हैं क्या हुआ? सर मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं। मेरे देश में सर मैं मॉनसून सेशन की बात कर रहा हूं। मेरे देश में कुछ हानि हुई क्या? हमने पूछा हमारे देश में कुछ हानि हुआ? अरे हमने इतने प्रदेश के दौरे किए, सिंगापुर भी गए, साउथ अफ्रीका महेश जी, अपोजिशन पार्टी थरूर भी ने, गए, एक सवाल आपसे, सुनिए मेरी बात। और आज उसके बाद महेश जी आपसे एक सवाल, जिन देशों में, सुनिए मेरी बात, मेरी बहुत नम्रतापूर्वक आपसे, राजू जी वेरी नम्रतापूर्वक आपसे विनती है, जिन देशों में गए चाय का प्याला मिला, ये बात भी थे ये, लेकिन क्या उस देश का साथ भारत सरकार को मिला? भारत देश को उन देशों तब से साहब बात रखी, तब से साहब जो आप सवाल कर रहे हैं नहीं की ना, मैं वही तो आपको कह रहा हूं। उनका जवाब सुन ले सर। बाकरे साहब इज अलोन राइट नाउ बिटवीन द टू ऑफ यू, दोनों के बीच में सैंडविच बन गया उनका। तो मैं जरा बाकरे साहब जरा बोलिए प्लीज। मैं पूछना चाहता हूं महेश जी से, जी बोलिए। इनके बड़े लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ये अभी कोट कर रहे थे उनको जी, और अपोजिशन पार्टी, मैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इनसे सबसे पूछना चाहता हूँ। इन्होंने कभी एक सवाल ऐसा पूछा क्या कि पाकिस्तान के कितने जहाज गिरे, पाकिस्तान में कितने आतंकवादी मारे गए, पाकिस्तान के कितने एयरबेस, तो इनको हिंदुस्तान की क्षति क्या हुई उसमें ज्यादा मजा लेना है, इंटरेस्ट लेना है, ना कि जो दुश्मन देश है। तो आपका एक लीडर का स्टेटमेंट बताइए सर, लेट मी से इट वेरी क्लियरली। लोगों की जानकारी दे रहे थे ना, आप जो जानकारी नहीं दे रहे थे उसके बारे में तो पूछ रहा जा रहा है। आप जो जानकारी नहीं दे रहे थे उसके बारे में पूछा जा रहा है। जो आप जानकारी दे रहे तो हमने एक्सेप्ट करी, जो जानकारी आपने दी वो हमने एक्सेप्ट करी, लेकिन वो भी आधी जानकारी दी। आपने बोला 5 हवाई जहाज, आईटीबी साहब बोल रहे I want to ask you one thing. राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव, शरद पवार साहब कहते हैं कि our fight to save the constitution, to save democracy, लोकतंत्र बचाना है, संविधान को बचाना है, ये वोट चोरी हमको रोकना है। एक संघर्ष चालू है कंटिन्यूस। कल राहुल गांधी जी जो डेड लिस्ट है, डेड पीपल है, उनके साथ चाय पीने, ये हाईलाइट करने के लिए देखो यार आपको इस चीज को मॉडिफाई करना पड़ेगा वोटर्स। तो क्या ये जायज? सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा डिलीशन की लिस्ट आपको पब्लिसाइज करनी पड़ेगी, रीजन ऑफ डिलीशन भी देना पड़ेगा।
इससे बड़ा तमाचा क्या हो सकता है? बाकरे साहब, क्या ये कैंपेन ठीक नहीं है? आप इसको विरोध क्यों? आप बोलते हैं 1952 में ऐसा हो गया, 1957 में रिग हो गया, 1967 में इंदिरा गांधी ने रिग किया, 1975 में इंदिरा ने 1980, तो क्या इज दैट एन आंसर टू some clarifications that they want where voter list is concerned? बाकरे साहब, प्रदीप जी, मुझे तो एक पहले तो अपोजिशन पार्टी शुड डिसाइड कि बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ करती है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ करती है। जब ये ईवीएम का रोना रोते हैं तो जब इनको सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है तब ये दूसरा। देखिए, इनकी मोडस ऑपरेंडी सिंपल है। व्हेन दे लूज द इलेक्शन दे से कि हम लोग चुनाव आयोग की वजह से चुनाव हारे। व्हेन दे से दैट आपको प्रूफ देना है, so they do press conference, they don't file any official complaint, they don't go to the court and they then try to spread the fake narrative। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ राजीव जी, प्रदीप जी, आपके अगर घर में चोरी होती है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि पुलिस में एफआईआर करेंगे? जब राहुल गांधी को पूछा गया कि कितनी ऑफिशियल कंप्लेंट आपने की और आप क्या ये चीज एफिडेविट में दे सकते, सो ही इज लाइक अ एलिटिस्ट एंड डायनेस्ट, ही सेज दैट माय वर्ड इज फाइनल। सो एक ये देखिए, आज महेश तापसे जी की पार्टी, हमारे समाजवादी मित्र जो है उनकी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इनके बीच में संविधान बचाना नहीं है, इनके बीच में परिवार बचाना है। परिवार को बचाना है, परिवार खतरे में, चाहे वो शरद पवार साहब का परिवार हो, चाहे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का हो, चाहे राहुल गांधी और गांधी परिवार हो। सो मेरा ऐसा पूछना है कि जब इनके बीएलए वो पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व है तो एक कंप्लेंट नहीं आती इलेक्शन कमीशन पे? आप समाजवादी पार्टी ने करी है कंप्लेंट, आपने ऑफिशियल कंप्लेंट क्यों नहीं की? समाजवादी पार्टी ने की है सर। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? कांग्रेस ने नहीं करी। आई एग्री विद यू, कांग्रेस ने नहीं करी है, बट समाजवादी पार्टी हैज बीन वेरी वाइज, दे फॉलोड द प्रोसीजर। कोई 9 सीट के करीब हैं जहां पर समाजवादी पार्टी ने एक्चुअल प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया। cognizance of and the inquiry will be done. So inquiry is being done. Inquiry is being done, especially with regard to. तो मुझे एक ही सवाल है कि घर में चोरी हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस। But on the question of the Congress, let me clarify again to our viewers, and we have discussed this so many times. The Congress has been remiss. They have not followed procedure. They don't complain at the time they are supposed to. Unlike the समाजवादी पार्टी 9 सीट्स ऐसी हैं यूपी में सर, लोकसभा इलेक्शन में, जिसमें समाजवादी पार्टी हैज पॉइंटेड टू डिस्क्रिपेंसी इन द पोस्टल बैलेट्स, और उनका ये कहना है कि ये 9 सीट में समाजवादी पार्टी को जीतना चाहिए था। अब इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कर रही है, बट समाजवादी पार्टी हैज फॉलोड, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या धीरे धीरे, जैसे उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आई डोंट फाइंड एनीथिंग राइट इन दिस कैंपेन ऑफ राहुल गांधी जी एंड द इंडिया अलायंस, उन्होंने कहा कि लोकसभा में जितने सीट मिले उससे ज्यादा सीट हमको वोट परसेंटेज असेंबली में मिला है, आई एम सेटिस्फाइड, आई डोंट बिलीव व्हाट राहुल, दैट इज व्हाट उमर अब्दुल्ला सेड। कांग्रेस के मिनिस्टर कर्नाटक के राजन्ना ने कहा कि हमारा सरकार जब ड्राफ्ट आया था, वोटर लिस्ट ड्राफ्ट आया था, आवर गवर्नमेंट वाज इन पावर इन कर्नाटका, वी शुड हैव चेक्ड एंड वी शुड हैव वेरीफाइड एंड वी शुड हैव रेक्टिफाइड इट। नाउ डू यू थिंक तपासे साहब धीरे धीरे आप ही के मींस इंडिया अलायंस के कुछ लीडर्स ही इस चीज को फिजल आउट कर रहे हैं कैंपेन को, ये आंकड़े देखकर? हाउ डू यू सी द तपासे साहब? See, let me tell you, as far as Maharashtra is concerned, let me be very, very focused on Maharashtra. Maharashtra mein there was a strong anti-incumbency right against the current incumbent. Mr. Shinde was the chief minister at that time, and there was strong anti-incumbency against him, against Ajit Pawar, and again against Mr. Devendra Fadnavis. Nobody believed when the results came that the entire opposition would be below 50 numbers in the legislature of Maharashtra. Nobody was accepting. Neither the bureaucracy was able to digest it, nor the people of Maharashtra, and nor the senior journalists like you could accept that kind of mandate which came. So what has happened in Maharashtra, the government of India, the BJP, or forget the government of India, the election commission does not have any answers. Contradicting figures were put across the website of the Election Commission of India, whether it be the state election commission or the national election commission, and it went for 2-3 days. It went for 2-3 days. There is no CC footage available. Why suddenly there was so much influx of voters at certain polling booths? So these are the pertinent questions which needs to be asked, and which I think every citizen has a right to know. If it's a people's mandate, we will accept people's mandate. But we say we smell a rat, we smell a rotten rat in this, and hence we don't say that it's a people's mandate. And we have every right to question the election commission. Who other than the election commission? Right. So so that's fine. That will go on. But now, since we really are heading towards the end of the show,
I would like to ask you, I'll proceed now from you, Tapse Saab, then I'll go to Janab Katyar Saab, and then I'll come to you, Samir Bagre Saab. Tapse Saab, I have a very fundamental question. It may not be a very serious question according to a lot of people, लेकिन ये सवाल बड़ा गंभीर है साहब. आप मुझे बताइए, सितंबर में एशिया कप शुरू होने वाला है. इंडिया इज गोइंग टू बी प्लेइंग पाकिस्तान. ये क्या है? एक तरफ हम बोलते हैं क्या डिप्लोमेसी एंड टेरर डोंट गो टुगेदर, वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर, एंड हियर आवर बीसीसीआई इज एग्रीड टू प्ले पाकिस्तान एशिया कप में. व्हाट इज दिस सर? डोंट यू थिंक वी शुड ऑल गेट अप एंड वी शुड ऑल प्रोटेस्ट एंड एटलीस्ट आस्क द प्राइम मिनिस्टर और आज द होम मिनिस्टर, भाई इनको थप्पड़ मार के बिठाइए इनको. क्या है ये? आप बताइए सर. तापसे साहब, बीसीसीआई जो हेड कर रहे हैं उनसे पूछना पड़ेगा. नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी क्या राय है सर? फॉर्मर शरद पवार साहब भी थे बीसीसीआई में. आज शरद पवार नहीं है. आज शरद पवार नहीं, आज कौन है आपको भी पता है, तो आप भी पूछ लीजिए उनसे. सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी क्या राय है? हम बताएंगे, हम अपनी भूमिका रखेंगे इस चीज के ऊपर, 100% अपनी भूमिका रखेंगे. सर डू वी, माय पॉइंट इज दिस, आइदर द कंट्री टेक्स अ डिसीजन, देश को ये निर्णय लेना चाहिए कि भाई नॉर्मलसी होनी चाहिए. आखिरकार यू कांट चेंज योर नेबर्स. लेट्स बी वेरी क्लियर, पाकिस्तान आपका पड़ोसी रहेगा ही रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं है, सीधी सादी बात है. तो सम स्टेप्स विल हैव टू बी टेकन एट द एंड ऑफ द डे फॉर नॉर्मलसी. इफ दिस इज इन दैट डायरेक्शन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, द होल कंट्री विल सपोर्ट यू. लेकिन एक तरफ आप ये नहीं कह सकते कि पानी और खून इकट्ठे नहीं चलेंगे और उसके बाद हम लोग क्रिकेट खेलेंगे इनके साथ. आज न्यूक्लियर थ्रेट आने के बाद बीसीसीआई को और विशेष कर से भारत सरकार को एक निर्णय लेना पड़ेगा कि आज अगर वहां पे बिलावल भुट्टो या मुनीर या वहां के भारत के बारे में न्यूक्लियर थ्रेट की बात करते हैं, तो क्या इस प्रकार का क्रिकेट मैच होना योग्य है? किस प्रकार की भूमिका बीसीसीआई ने लेनी चाहिए, इसके ऊपर मुझे लगता है कि सरकार ने दबाव बनाने की आवश्यकता है. राइट. कटियार साहब जी, आप बताएं सर, भारत का मैच होगा पाकिस्तान के साथ एशिया कप में 14 सितंबर को 7:30 बजे एट द दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम. भारत की टीम जा रही है एशिया कप में खेलने के लिए और बीसीसीआई की तरफ से कोई अभी तक वक्तव्य नहीं आया है कि हम पाकिस्तान का मैच बॉयकॉट करेंगे या नहीं करेंगे. लिहाजा अगर एशिया कप में खेल रहे हैं तो हाउ कैन यू बॉयकॉट? आपको खेलना ही पड़ेगा. तो सर वो क्या हुआ फिर कि पानी और खून इकट्ठे नहीं चल सकते, आतंकवाद जो है वो इट विल बी कंसीडर्ड दिस दैट वगैरह वगैरह वगैरह. एन एक्ट ऑफ भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र है राजीव साहब जी, अच्छी से अच्छी बात करना और बुरे से बुरा काम करना. जब ये सरकार का नजरिया बन जाए कि हमको फायदे और नुकसान में चुनना है, मोदी जी जहां नुकसान होगा वहां बोलेंगे, फायदा होगा वहां बोलेंगे. जब किसी शासक का नजरिया सही और गलत से हटके और फायदे और नुकसान के बीच तक पहुंच जाएगा तो राजीव साहब इस तरीके की घटना तो बड़ी स्वाभाविक हो जाती है. लेकिन समाजवादी पार्टी का इसमें क्या रुख है सर, ये तो बताएं आप लोग. क्या समाजवादी पार्टी का तो रुख बिल्कुल क्लियर है कि जिस देश के साथ इस तरीके की बातचीत है वहां तो समाजवादी पार्टी का तो रुख ये है कि मोदी जी बेमतलब में वहां बिरयानी खाने जाते हैं. ये भी बात गलत है सर. आज क्रिकेट मैच होना चाहिए, ये बात भी गलत है. हमें ये पता है कि जो देश हमारे देश के साथ, हमारे देश की जनता के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं तो उनके साथ इस तरीके के रिश्ते तो नहीं होने चाहिए. इस तरीके के रिश्ते सरकार को मजबूत फैसला लेना चाहिए, लेकिन मजबूत फैसला भी मजबूत सरकार ले सकती है. यानी क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए. ये व्यापारी जो कहते हैं ना कि साहब ये तो व्यापार के लिए युद्ध रोक दिया. सर अब ये भी तो पैसे साधारण सर सरल शब्दों में बोलिए ना सर, घुमा क्यों रहे हैं बात को? कोई पॉलिटिकल रैली थोड़ी है. मैं आपसे क्लियर पूछ रहा हूं कटियार साहब, क्या हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलना चाहिए या नहीं सितंबर में? नहीं खेलना चाहिए. भारत की जनता की समीर बागरे साहब इसके खिलाफ है. समीर बागरे साहब, व्हाट डू वी डू नाउ? मैं स्ट्रांगली मानता हूं कि भारत को पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच खेलना नहीं चाहिए और मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है और मुझे भाजपा का भी ओपिनियन पता है कि वो भी बीजेपी भी हमारी पार्टी चाहती है कि ऐसा कोई क्रिकेट मैच ना हो और 14 सितंबर के पहले डेफिनेटली निर्णय लिया जाएगा. And we cannot be playing anything as a sports or as a art with a enemy country which is killing our innocent citizens. So absolutely this should not happen.
and this will not happen. That much I am confident. Thank you so much for saying that, sir. Thank you very much, Bagre Saab. And this is the third time Bagre Saab has said this on this program. We have asked him this earlier also, and Sameer Bagre Saab has been very upfront and very straight and very frank. Even though it's your personal opinion right now, I hope this will also be the government's opinion, and they will advise the Board of Control for Cricket in India. प्लीज डोंट डू दिस. और जहां तक सर तापसे साहब आपने बीसीसीआई की बात करी, मिस्टर जिनकी आप बात कर रहे हैं जय शाह साहब, वो तो आईसीसी के प्रेसिडेंट है सर, वो तो बहुत बड़े आदमी है. मैंने किसी का नाम नहीं लिया. हमारे प्रेसिडेंट तो रॉजर बिनी साहब है सर, और उनकी भी टर्म खत्म हो गई अभी. न्यू प्रेसिडेंट हैज टू बी अपॉइंटेड. लेकिन 1986 में हमने स्किप किया था, श्रीलंका में जब एशिया कप हो रहा था जी, तो 1986 में हमने स्किप भी किया था बिकॉज ऑफ एलटीटी. ये भी आपको पता है जी, मालूम है. लेकिन बट वी स्टिल प्लेड अ फ्रेंडली खेली थी सर हमने. वी प्लेड अ फ्रेंडली. कोई फ्रेंडली ना खेले, हम लोग सब विनती करें भारत सरकार से कि बीसीसीआई पे दबाव बना के उसको खारिज किया जाए. सर, और इट कैन बी द अदर वे अराउंड. लेट्स ट्राई एंड मेक अमेंड्स. Let's try and get Pakistan onto the right direction. ये भी हो सकता है ना सर, ऐसी क्या बात है. But I think don't you think Jay Shah, ICC chief, India should have taken a stand long early. इसको डिले करने से तब से साहब, you think it's a wrong way. You're saying a wrong president. लोगों को इंतजार में रखे रहे कि हम खेलने वाले नहीं खेलने में. अब तक लेना चाहिए. अब 3 दिन लगातार 4 दिन से पाकिस्तान थ्रेट कर रहा है वॉर का. उसके बावजूद अगर इसको how do you see तब से साहब तुरंत होना चाहिए एक्शन. देखिए, होना तो चाहिए. मुझे तो लगता है कि अगर कोई हमारे देश पे न्यूक्लियर बम फेंकने की कोशिश बात कर रहा है तो उसकी गेंद को हम ऐसा बल्ला मारना चाहिए कि क्या बोले. लेकिन वो क्रिकेट वाला बल्ला की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं झापड़ वाले बल्ले की बात कर रहा हूँ. दुरुस्त बात है. और बड़ी अजीबोगरीब बात यह है, जो बात आई एक्सपेक्टेड वन ऑफ यू टू से, लेकिन आप लोगों ने कहा नहीं. मैं फिर भी आपकी तरफ से बोल देता हूँ, तीनों की तरफ से बोल देता हूँ. सर, ये पहली बार हुआ है व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिल रहा है बार बार. ही इज नॉट मीटिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट कंट्री. उस देश के प्रधानमंत्री से नहीं मिल रहा है, प्रेसिडेंट से नहीं मिल रहा है, उसका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिल रहा है. भाई क्या, कैसा प्रेसिडेंट है और कैसा देश बन गया है अमेरिका, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है. वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट. नो अदर प्रेसिडेंट इज डूइंग व्हाट मिस्टर ट्रम्प इज डूइंग. एनीवे, गॉड ब्लेस हिम. That's all that we can say. Right, gentlemen, thank you very much. Very good news as far as India is concerned. We have done this great deal with Burkina Faso. We have done this great deal with Brazil. And we are doing a great deal very, very shortly. I think there's going to be a great summit on August 31st with China at on the sidelines of the Shanghai Council of Countries. And that I think will be absolutely fantastic. Thank you, gentlemen. Thank you very much for joining us. Namaskar. Namaskar. Well, everybody agrees that we should not be playing Pakistan. So why are we playing Pakistan? Sir, we should have taken a stand long back, as you were saying. Why are you dragging on this? और क्या सुनना है? रोज वहां से थ्रेट आ रहा है. अरे सर, वो बोल रहा है मैं परमाणु करेंगे, इंडस के 6 नदी हम छीन के लेंगे. अरे वो बोल रहा है उसके बावजूद हम प्रदीप जी परमाणु युद्ध करूंगा, आधी दुनिया को अपने साथ में ले जाऊंगा, और साथ में जो रिलायंस का प्लांट भी जो है जामनगर का, उसको भी उड़ा दूंगा. ऐसा बोला है साहब ने. So, and we are playing cricket with this. We need to take a decision, and we need to take it fast. The very fact that Jay Shah is ICC chief and Amit Shah is the home minister, ये तुरंत decision होना चाहिए था. At least, okay, fine. If Mr. Amit Shah does not want to interact with his son because he is the chief of the ICC and therefore bound by so many of these International Cricket Council rules, he can at least talk to the BCCI, because Roger Binny continues as president on extension. We can always talk to him. What are you doing? Just say no. That's it. We're not coming. We will not play Pakistan in any tournament anywhere. That's it. Khatam. Kar kya rahe hain aap log? In fact, all the Pakistani commentators the other day were saying that we'll be very glad if India does not come. जो अभी वेस्ट इंडीज ने हमको 220 रन से हराया, पता नहीं इंडिया कितने रन से हराएगा, हमारी तो हालत खराब होने वाली है. But that's a separate issue. Jokes apart, but the fact remains, as far as we are concerned, sir, मुझे तो एक बात का डर है, like भगवंत मान of the Chief Minister of Punjab, मुझे तो एक बात का डर है, कहीं ऐसा ना हो कि अगले दिन ट्रम्प साहब ट्वीट कर दें कि द इंडस वाटर ट्रीटी हैज बीन रिस्टोर्ड. कहीं ऐसा ना हो कि मैंने बोल दिया मोदी जी को कि इंडस वाटर ट्रीटी हैज बीन रिस्टोर्ड. आई होप दैट. I am more concerned about the Chinese fear. The Chinese fear that one call from Trump and Modi will just jump the fence and go there. They believe that India and Prime Minister Modi is still fence sitting. They're still fence sitting without taking. They probably don't want a total alliance with China. They're just waiting for Trump to call him, and then he'll just jump out and they have a reason for it. Leave China in the lurch. Pradeep ji, you know what the reason is? आपको मालूम है वजह क्या है? जब ट्रंप ने 100% टैरिफ्स अनाउंस किए चाइना पे,
So China imposed reciprocal tariffs on all American goods. चाइना ने एकदम इम्पोज किए, एकदम रिटेलिएट किया चाइना ने. इंडिया हैज नॉट रिटेलिएटेड एट ऑल. किसी भी अमेरिकन इंपोर्ट के ऊपर हम लोगों ने कुछ नहीं किया है. आपको शायद मालूम ही होगा, बिकॉज यू आर अ मोटरसाइकिल फैन, हार्ली डेविडसन के ऊपर हमारे 50% होता था टैरिफ, उसको हम 30% पे ले आए. आज की तारीख में 10% है सर, 10 और 15% हार्ली डेविडसन पे. वी हैव नॉट इंक्रीज्ड इट. In spite of the 50% tariff against us, we have not increased any tariff on any American import. We haven't done it. And I remember earlier presidents also just requesting, you need to see how you can reduce the tax on Harley Davidson. That's what Obama said. Obama, right. when he went MMS, Manmohan Singh ji. That's right. He said, please reduce Harley Davidson's tax. That was a request. And Dr. Manmohan Singh explained to him very nicely that if the Harley comes down to the level of, say, Royal that the Enfield. cost is that is the Royal Enfield or the Kawasaki Bajaj or the Hero Honda, who's going to buy any of our brands? Everybody's going to go in for the Harley. Well, that was the thinking at that time. But in any event, all I'm saying is we need to have clarity. We need to have absolute clarity on where we are going and what we are doing. सीधी सादी बात है. अभी क्लैरिटी नहीं आई है. एंड द चाइनीज आर वेरी राइट बाय द वे ओवर हियर इन थिंकिंग दैट व्हाट इज गोइंग ऑन ओवर हियर. व्हाई आरंट द इंडियंस रिटेलिएटिंग प्रॉपर्ली एज दे शुड? व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? आप बोलते हैं हमने 50% टैरिफ हमारे ऊपर लगा दिए हैं, वी शुड इंक्रीज द टैरिफ्स बाय अनदर 50%. वी शुड हैव रेसिप्रोकल टैरिफ्स. ऐसी क्या बात है? एंड वी शुड इंपोज अ पेनल्टी ऑन द अमेरिकंस फॉर थ्रेटनिंग अस एंड फॉर साइडिंग विद पाकिस्तान. आप कहते हैं ना कि we are imposing a penalty on India for buying Russian oil. This is it. Because that money is finally used by Russia to finance its war against Ukraine. We are imposing a penalty on Mr. Trump and the United States of America for hosting a terrorist like Field Marshal Munir. He's a terrorist. Let's be very clear. He said, president of a country meeting a field marshal. He's meeting a field marshal of an army. Everybody knows how he's the field marshal. मुझे बताइए, बार-बार उनसे मिलना, it's propriety of the entire White House has been destroyed completely. never before. आप मुझे बताइए, ये ट्रम्प साहब जो हैं नेगोशिएशंस और पाकिस्तान कर रहे हैं मुनीर से, और बार-बार उसको रेफर करते हैं पाकिस्तानी लीडर मुनीर. अरे पाकिस्तान का लीडर शहबाज शरीफ है भाई. I think either Shahbaz Sharif should resign or should do something else. I mean, what? Has he given up? Is there no prime minister in Pakistan anymore? What's going on here? और एक प्राइम मिनिस्टर जो था आपका इमरान खान, उसको आपने जेल में डाल रखा है. एंड यू रेप्ड हिम इन जेल अकॉर्डिंग टू इमरान खान हिमसेल्फ. उसका बलात्कार कराया आपने बाकी फौजियों से और पठानों से जेल के अंदर. एंड मिस्टर ट्रम्प इज एनकरेजिंग सच अ नेशन. Rightfully, we should be imposing 100% tariff on all American goods. That's the time when the Chinese will take you seriously, the Russians will take you seriously, Brazil will take you seriously. This fence sitting is not going to help. What's going on here? Or does it have something to do with the double A's? Does it have something to do with that? God knows. We don't know. But at this point of time, when US is attacking India, I don't think anybody will say that Adani ka apne summons क्यों? Because they are trying to point out the same thing. Adani ka summons issue karo, start the process. I mean, that's wrong, because we are saying all I'm saying, sir, is we should retaliate against the Americans right now. We should be very firm. Or at least, even if you don't retaliate, at least there should be a statement which should be a very, very firm statement. We don't care. That's what the Chinese said. What did the Chinese say to the Americans? And they said it publicly. The Americans said, you will lose 17% of your market. They said, we don't care. We don't care. We'll find new markets. And even if we don't find new markets, we don't care anyway. But we are not going to succumb to blackmail. That's exactly what we should be saying. That Piyush Goyal, instead of making those, conciliatory sounds that he made at that India Today conclave, rightfully speaking, he should have put his foot down and he should have said, hey, listen, we're not going to be talking to a country who's trying to bully us or blackmail us. क्या है? क्या समझा हुआ है? क्या राजू गाइड समझा हुआ है? What is it? वो चाय वाला समझा हुआ है? ए छोटू चाय लेकर आ. That's the way Trump is treating us. Is that the way that you treat a country like India? We have never been treated like this, even under Indira Gandhi. At that time, India was hardly in the reckoning of even the first top 50 economies. We were nowhere. And even then we had more dignity and more strength.
So at least some statement should come out from India which should be very, very firm, where we should say, hey, listen, tell your president not to talk to us like that. He has called us a dead economy. If he has called us a dead economy, why does he want to negotiate? What for? You don't negotiate with dead people. And the trade delegation coming now. And now, 25th of August, Yes. there's a trade delegation of US coming over here. Yes. Why are you coming and talking to a dead economy? For what? Anyway, that's my opinion. But then I'm what? Nobody. It's finally the government of India that has to decide. And I hope whatever they decide is in the interest of the nation. मैं उम्मीद यही करता हूं कि भारत के हित में जो भी निर्णय लेंगे वही होगा. हाँ, एक चीज जरूर है, इंडस वाटर ट्रीटी को अगर आपने दोबारा लागू कर दिया तो भारत का कोई भी शख्स आप पर विश्वास नहीं करेगा. Let's be very clear. The Indus Water Treaty has to remain in suspension. वो इंटरनेशनल कोर्ट, अब वो जो आर्बिट्रेशन का जो कोर्ट है, उन्होंने एक अवार्ड दे दिया पाकिस्तान के पक्ष में. एंड एज इंडिया सेड, वी वर नॉट इवन रिप्रेजेंटेड देयर, वी डिडंट वांट टू गो देयर एंड वी डोंट रिकॉग्नाइज योर अथॉरिटी. थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय. That's it. And that should be the stand of India. We need a strong Prime Minister. We know Mr. Modi is a very strong Prime Minister and he should behave with strength. India has lived through the era when we had to wait for 10 years for a car. प्रदीप जी, 3 साल लगते थे कुकिंग गैस कनेक्शन लाने के लिए, 5 साल लगते थे फोन के लिए. And now everything is on the line, online. सब कुछ यहाँ पे सब कुछ मिलता है. 10 मिनट में आ जाते सब कुछ. आज भारत के पास क्या नहीं है, तो अभी डर का है का? मुझे तो ये समझ में नहीं आता. अरे भैया, जहां तक अमेरिका का सवाल है, हम आपको बेचते हैं, आप हमें नहीं बेचते. आपको मालूम है डेफिसिट है. We sell $81 billion worth of products to the Americans. The Americans sell only about 30 or 35 billion dollars worth of products to us, which is why they are going nuts. They are also going nuts over Operation Sindoor. They are also going nuts over the fact that the Indians have refused to acknowledge President Donald Trump's so-called claims again and again that he was responsible for the ceasefire. And also that we refused, the Prime Minister, all credit to him, refused to allow Trump's cryptocurrency to come to India. We said no, thank you. We only deal in legal tender. We do not deal in these illegal cryptocurrencies being used by drug smugglers all over the world. Anyway, well, that's my opinion. I hope the Prime Minister acts the way we expect him to act. Well, that's it in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. याद रखिए, आज बंटवारा दिवस है. बंटवारा दिवस का रिमेम्बरेंस डे है. आज बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान का, जिसमें न जाने कितने लोगों की जानें गई थी. उन सबको हमें याद करना चाहिए और फिर तय करना चाहिए पाकिस्तान के साथ क्या करना है. दूसरी चीज, कल आज़ादी दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है. आप सबको स्वतंत्रता दिवस की, इंडिपेंडेंस डे की बहुत 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 शुभकामनाएं. प्रदीप जी. Fantastic. Well, Independence Day. Independence Day. Happy Independence Day to everybody for a tomorrow. fantastic Independence Day. Right? And let's hope India goes from strength to strength. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. प्रदीप जी और मेरी तरफ से और पूरी नेशन नाउ की टीम की तरफ से एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई स्वतंत्रता दिवस की. आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय सब्सक्रिप्शन का भी याद दिला दे हमारी जी. स्टाफ शायद. वंदे मातरम. एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल. चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साहब. The fastest growing channel of the nation, Nation Now. फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल ऑफ द नेशन, नेशन नाउ. आप सब लोगों को जय हिंद, भारत माता की जय.